There was a major breach of parliamentary security today. Two men jumped from the visitors' gallery onto the Lok Sabha floor. One of them was carrying a smoke canister inside his shoe. The house was filled with a yellow color smoke for some time. A bunch of MPs caught hold of both of these men, thrashed them, and then handed over these two men to the security. Simultaneously, two others were protesting outside the Parliament building. They also released some kind of yellow smoke. They too were detained and handed over to the police. Now it turns out that all of these four people were part of a larger gang. They had met on Facebook. They were part of some group. This was clearly a conspiracy. They had stayed in Gurugram just a few days ago. One person was from Lucknow, another one from Mysore, one from Jind in Haryana, and a fourth one from Maharashtra. This was a well thought out conspiracy. They were protesting against price rise and unemployment. This is a major breach of parliamentary security on a day when the nation was remembering the 13th December 2001 Parliament attack. So security would have been heightened anyway. So how did this breach happen? And who is responsible for this serious security breach? Who will be held accountable? Will heads roll starting from the top? But all of that and more in just a moment. But first, I want to bring you up to speed with the pictures that came out today. It was pretty dramatic. This was in the 0 hour, a little past 12 o'clock. You can see this one man in a denim blue color jacket jumping from the visitors gallery and then jumping over benches. Now, remember, he'd crossed about a good 15-16 feet from the visitors gallery onto the Lok Sabha floor and then jumps over these benches. The MPs then try to corner him, and then after that, they catch hold of both the intruders and then they beat him up. The second intruder blows smoke bomb into the Lok Sabha. You can see these pictures. There's yellow smoke all over the Lok Sabha floor as MPs are trying to come to terms with what is it that actually happened. So yellow smoke entirely in the Lok Sabha floor. Then the Lok Sabha MPs catch hold of both these intruders, and you can see that a whole bunch of MPs there are beating, they're thrashing both of these intruders. Then they realize that there was color bomb thrown outside the Parliament building as well. Even as these two intruders were being caught and dealt with inside Parliament, outside there were two others who were putting out this yellow color smoke canister outside the Parliament building, and you can see Delhi police taking them away. They were sloganeering outside the Parliament building as well. For the ones who were inside, their shoe was used to conceal the plastic canisters. The plastic smoke bombs that were being carried were concealed in these shoes. A visitor pass was recovered from one of the intruders, Sagar Sharma, who hails from Lucknow, and it is clear from the visitor pass that Pratap Simha, who is the BJP MP from Mysore, he was the one who had recommended a visitor pass for both of these people who then went in. Let's take a look at what are the various layers of security, the various levels of security that had to be breached for this to happen. Level 1, which is outside the building, there are metal detectors, there are handheld metal detectors. This is at the first point of entry outside the building. There's physical frisking as well that happens outside the entry gate. Level 2, once you enter the building, there is again metal detector, there is frisking. This is repeated just outside the entry gate of the Parliament building. Level 3 security, which is present in the corridor that leads to the various visitor galleries. Remember, there are 4 or 5 visitor galleries, after which there is a press gallery. The visitors are not allowed to carry either their mobile phones, they're not allowed to carry water bottles, not even a sheaf of paper is allowed for the visitors as they enter the visitor gallery. And yet, these two managed to carry smoke canisters on their person into the visitors gallery and jump from there onto the Lok Sabha floor. So the big questions, and there are many big security questions that need to be asked. Number 1, how did these intruders breach 3 full layers of security and gain entry into the temple of democracy? How did the two intruders clear 2 layers of metal detectors? If they had explosives inside their shoes, how did they clear the metal detectors? Were they frisked? Because if they were frisked, then surely the security personnel would have known that they were carrying these kind of explosives inside their shoes. How did they manage to smuggle those smoked canisters?
Yes, there is a post facto picture of one of the shoes and the canister in the shoe, but shouldn't it be obviously frisked? And if it was, then how come they did not find it? Was there no vetting of these two people before they were granted a visitor pass by the staff of a member of parliament? These are very, very critical questions which need to be asked, and we're going to ask that tonight. A full panel of MPs will be joining us. But first, the details of what happened today in Parliament. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Poses very serious questions about the efficacy of and the robustness of the security system in Parliament. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी जांच का विषय है, आगे चल के अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया। No doubt, it is a very, very serious security breach, and that breach was caused through a BJP MP from Mysore. Government is accountable. They should come out and say how it happened, why it happened. How could these people get inside? All right, that brings us to our big debate topic tonight. Will heads roll for what is an obvious and glaring security lapse, and that too at the temple of our democracy? Hello, Moto. Okay, I promised a full MPs panel joining us tonight, all of whom were there in the Lok Sabha when this security breach happened. Subrat Pathak is a member of parliament of the BJP. Shyam Singh Yadav, member of parliament of the BSP. Gurjeet Singh Aujla is a member of parliament of the Congress Party. Hanuman Beniwal, member of parliament of the RLP. And Kakoli Ghosh Dastidar of the TMC is also joining us. S.N. Srivastav is former Delhi Police Commissioner, who's also joining us. Subrat Pathak, you were there when this incident happened, these two men jumping from the visitors gallery onto the Lok Sabha floor. This is a serious security breach. Tell our viewers what you saw and what your first instincts were. What was going through your mind when you saw these dramatic pictures? एक्चुअली में हम लोग बैठे थे, मैं पानी पीने के लिए बाहर चला गया। बाहर गया तब तक एक फ़ोन आ गया। फ़ोन पर मैं वेटिंग रूम में बैठकर बात करने लगा जी। तो बात कर ही रहा था, इतनी देर में से अंदर से कुछ आवाज़ें सी आने लगी। तो क्या हुआ, वो लोग चिल्लाने लगे। तो एकदम से सिक्योरिटी गार्ड जैसे दौड़े। तो हमारे साथ में और भी सांसद जो लोग बैठे थे वो भी एकदम से दरवाजे की तरफ दौड़े। तो क्या हुआ, तो हम लोग भी एकदम से भागे। तो तब तक देखें कि दरवाजे से वो एक वो निकल रहा था, और जो बांदा के सांसद हमारे आर.के. पटेल जी के मुंह की तरफ उसने जो है वही जो हाथ में पकड़ा था वो धुआं निकल रहा था, जिससे उसको उसके मुंह की तरफ लगा दिया। तो उन्होंने उसका एकदम से गिरोबान पकड़ के उसको खींचा। तब तक और भी सिक्योरिटी गार्ड आ गए, उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। फिर पकड़ के उसको हम लोग सारे लोग थे ही, तो वहाँ दरवाजे से लेकर वही वेटिंग रूम में जहाँ पर हम लोग बैठे थे वहाँ पर फिर उसको लेकर आए। फिर वहाँ पर दूसरा आदमी भी आ गया, तो उन दोनों को वहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने आके वहाँ बंधक बनाकर उसको लेकर चले गए। रही बात देखो सुरक्षा की दृष्टि से, तो मेरा तो बस यही कि भाई संसद के भीतर अगर कोई आएगा तो स्वाभाविक है कि बगैर सांसद की अनुमति के उनसे अनुमति से पास बनता है। जब सांसद अपना साइन करते हैं तो सांसद का साइन कराकर कोई पास बनवा लेता है, और उसके बाद में इस प्रकार से भीतर आ जाता है। भाई अब सबके जूते तो उतार के नहीं देखे जाते हैं। अब वो जूते में घुस के लाया, जैसा कि अंदर उसने जूते से ही उसको निकाला था। तो वो जूते से मैं अपना घुस के लाया, तो सब लोग जूते पर तो ध्यान देते नहीं है। अच्छा, ना तो उसमें कोई विस्फोटक नहीं है, कुछ अन्य चीज़ नहीं है। तो जो शायद अगर विस्फोटक वगैरह कुछ होती तो शायद उसके जांच में, अपना सुरक्षा जांच में सामने आ जाती। लेकिन इस प्रकार का अब ये विषय अब जो हुआ वो तो हो ही गया,
लेकिन अब सबसे बड़ा विषय ये क्यों हुआ, क्यों आज ही के दिन क्यों हुआ। आज के दिन केवल यही नहीं कि आज के दिन संसद के ऊपर हमला हुआ था, आज तो विशेष 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बहुमत के साथ में वहां सरकार बनाई है। और जिस प्रकार से एक तीनों राज्यों में, और खासकर अभी आप देखो पिछले 4 दिनों में तो 4 बड़े फैसले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाना, एक यदुवंशी समाज के व्यक्ति को मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक मुख्यमंत्री बनाना है। भाजपा का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता राजस्थान जैसे राज्य में मुख्यमंत्री बनता है, एक बड़ा मैसेज जाता है। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के ऊपर भी जो मोहर लगाई है, तो एक बड़े 4 मुद्दे और एकदम से इसको लाना, तो आखिर क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? क्या प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, या किस तरीके से उनको बदनाम किए? तो आपने देखा तमाम प्रकार के षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। तो खैर जो भी है इसके पीछे एक कोई षड्यंत्र है या क्या कारण है, ये निकलकर सामने आएगा। हाँ, और जब सामने आएगा तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिसने भी किया है बड़ी गलती कर गया है। अब कितनी कठोर कार्रवाई होगी लोग देखेंगे एक नजदीक। गुरजीत औजला जी भी हैं हमारे साथ। गुरजीत जी, हमने टीवी पे देख भी लिया कि आप उन एमपीज में थे जिन्होंने इनको पकड़ा और जैसे आप पकड़ रहे थे उसने शू के अंदर से कुछ कैनिस्टर टाइप का चीज निकाला और उससे धुआं आ रही थी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या एग्जैक्टली हुआ और क्या चल रहा था उस समय संसद में। संसद में उस समय अर्जेंट मैटर 0 आवर के में उठाने का जो टाइम था वो था, और लंच होने वाला था, हाउस रिजर्न होने वाला था। मैं 17 नंबर पे बोल रहा था, 3 सांसद और थे। जब मैं बोल के बैठा फार्मर इशू पे, तो थोड़ी देर बाद ही पीछे से आवाज आती गैलरी से, पकड़ो, कोई छलांग लगाता है। तो मैंने देखा तो 2 लोग छलांग लगाया, एक आगे, जब मैं देख रहा, दूसरा उसको रेलिंग को पकड़ के नीचे आ रहा था। तो हमने उसी समय उठ के उसको मतलब ललकारा कि इसको पकड़ो, कोई भाग ना पाए। तो किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि सबका ध्यान स्पीकर की तरफ था जी। तो मैं उतर के वहां से पहले उठा, मैंने आवाज दी। जब मैं फिर निकला जोर से हमने कि इसको वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था शू से ऊपर, वो बेंच के ऊपर से आ रहा था जहां सांसद बैठते हैं। तो मैंने उतनी देर में हनुमान बेनीवाल था, उसने आगे होकर उसको हाथ से खड़ा मतलब उसको उसके आगे हाथ कर लिया, तो उसको पकड़ा। हमने उसको तो पकड़ लिया, तो मेरे ध्यान में दूसरा भी था क्योंकि इनका सबका ध्यान आगे था। मैंने उसको देख लिया था, फिर मैंने उसको छोड़कर उसकी तरफ भागे। उतनी देर में उसने वो बम निकाल के और वो जो स्मोक था वो करना शुरू कर दिया बहुत, और वो मतलब तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। फिर उस समय मैंने उसको दबोच लिया। उस समय तो मैं अकेला ही था, दबोच कर वो बम छीनने लगा, हाथापाई हुए, लेकिन मैंने बम छीन के फिर मैं बाहर की तरफ भागा कि ये कोई विस्फोट ना हो, इसको बाहर फेंक दो। तो जब आपने छीना तो आपको नहीं लगा कि मतलब ये कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है, कोई विस्फोटक हो सकता है? आपको डर नहीं था? ये इतना सोचने का समय नहीं था, यही था कि हम अब बचना है कैसे भी है, ये अंदर ना कुछ हो, ये सोचा था कि अंदर ना कुछ हो। ये दिमाग में मतलब उस समय परमात्मा की कुछ ताकत थी, कोई लोगों की ताकत कह सकते हो, कुछ परमात्मा की मर्जी थी कि हमने तो सोचा नहीं था। हमने तो मतलब उनको पकड़ लिया जाकर के, वो कोई ह्यूमन बम भी हो सकते थे, पता नहीं क्या हो सकते थे, गॉड नोस। तो लेकिन सबने उसको फिर उसने हम सिक्योरिटी के आगे, ये तो 1-1.5 मिनट का वाकया हुआ, 1.5 मिनट मैक्सिमम, 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं है। उसी में उनको दबोच लिया हमने। वो तो हमारा तो टारगेट सिर्फ वही थे कि इनको पकड़ना है। हम तो उन्हीं की तरफ भाग रहे थे कि ये कहीं आगे और ना घुसे, और वो स्पीकर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ज्यादा सांसद आगे बैठे हुए थे क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, तो थोड़े बोलने का टाइम था। तकरीबन ज्यादातर सांसद चले गए थे और जितने भी थे वो आगे बेंच वालों में थे, मंत्री भी लोग भी बैठे हुए थे। तो उसको जब दबोचा, उसका सर फिर मैंने बाहर फेंक के, फिर मैंने आकर उसको सारा उसको भी चेक किया भी कोई और कोई चीज तो नहीं है उसके पास, तो फिर सिक्योरिटी के हवाले कर दिए बाहर। तो बेनीवाल जी का जो जिक्र किया आपने, वो भी हमारे साथ हैं इस शो में। बेनीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आपके साथ ही लोकसभा सांसद औजला जी बता रहे थे कि क्या क्या हुआ था। सिर्फ आप ही बैठे थे जो आगे के रो और पीछे के रो के बीच में ये आदमी जो भाग रहा था, बताइए आपने कैसे उसको रोका? हमारे दर्शकों को बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इस आदमी जैसे भाग रहा था बैक बेंच से लेकर स्पीकर की तरफ, आपने क्या किया और कैसे ये पूरा घटना घटी, हमारे दर्शकों के लिए एक बार बताइए बेनीवाल जी। देखिए, शून्यकाल चल रहा था
और शून्यकाल में मुझे भी बोलना था और नेक्स्ट स्पीकर मैं ही था। बीजेपी के एक सांसद बोल रहे थे, राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे जी। और मैं जो पार्लियामेंट का हमारा बैठने का सिस्टम है उसमें सेकंड नंबर पे बैठा हुआ था। मेरी चेयर पीछे है लेकिन मैं आगे चला गया था भाषण देने के लिए। और जब बीजेपी के सांसद को बैठने का इशारा करके मुझे बोलने का इशारा किया राजेंद्र अग्रवाल जी ने कि नेक्स्ट आप, तो मैंने देखा कि वो पीछे की ओर देख रहे थे बीजेपी के सांसद, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटका हुआ था, इससे गैलरी से लटका हुआ था पार्लियामेंट के अंदर की तरफ, और दूसरा व्यक्ति अंदर कूद चुका था। और 1 मिनट में मेरे माजरा समझ में आ गया, कोई अंदर कूद गया, कोई बदमाशी हो रही है। तो मैं पीछे की ओर बढ़ा और एक व्यक्ति फिर छलांग लगा था, वो आगे आ रहा था, जिसको आप वीडियो में देखेंगे। मैंने आधे मिनट बाद उसको रोक लिया, रोक के उसको काबू भी कर लिया, उसको पटक भी लिया। और जो दूसरा था उसने पीछे से गैस छोड़ी सांसदों पे, और उस समय राजनाथ सिंह जी अंदर थे, कई मिनिस्टर अंदर थे, लोकसभा अध्यक्ष चैम्बर में थे। और उसने फिर जब हमने उसको पकड़ के और उसको ठीक किया तो उसने अपने जूते में से वो निकाल के जो साथ में लाया था सोल के अंदर, उसने जो धुआं था उसने वो धुआं हमारे ऊपर छोड़ा। लेकिन पीछे वाला जो व्यक्ति था उसने स्प्रे ज्यादा किया, जिससे चारों तरफ धुआं हो गया था। सबसे बड़ी बात कि 2 लोग इनको और सपोर्ट करे थे ऊपर गैलरी के अंदर, एक महिला और एक आदमी। उनका कोई खोज खबर ही नहीं है। अभी हम तो देख रहे हैं कि बाहर से 2 लोगों को पकड़ लिया, एक लेडी अलग थी, वो अलग थे। 2 लोग जो अंदर और थे, 2 4 थे, अंदर 4 थे, 2 कूद गए थे, 2 कूदाने में थे, और वो 2 थे वो और थे। इनका पूरा गिरोह है। इसकी जांच होनी चाहिए। वो ये कह रहा था कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, जब उसको पीटा कि मैं लखनऊ का रहने, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात का प्रोटेस्ट, आप बताएं। आज संसद की उन शहीदों की बरसी है जिन्होंने 2001 में जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो शहादत दी देश के लिए, सबको बचाया, और आज ही का दिन चुन के इन्होंने चुनौती दी। ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी का फेल्योर है, लोकसभा सचिवालय का पूरा फेल्योर है। लोकसभा अध्यक्ष जी का बयान पढ़ रहा था, कोई बात नहीं, मामूली बात कैसे? आज तो 13 दिसंबर है, जैसे आपने भी बोला और बेनीवाल जी ने अभी जिक्र किया कि पार्लियामेंट की जो अटैक हुई थी 2001 में, उसकी श्रद्धांजलि है, उसकी एनिवर्सरी है आज। वैसे ही जो सुरक्षा व्यवस्था है पार्लियामेंट के अंदर वो तो बढ़ाया गया होगा। उसके बावजूद ये लोग, 2 लोग अंदर और 2 लोग बाहर अगर घुस सकते थे तो फिर कुछ कठिन सवाल तो पूछना ही चाहिए। जो कानून व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में तो कुछ कठिन सवाल तो पूछना ही चाहिए, और सारे एमपीज को पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब एक तरफा एमपीज को पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपके सारे सुरक्षा का मामला है। पाठक जी से सहमत हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी को सुरक्षा की चूक हो गई नहीं हुई है। सुरक्षा की चूक तो 2001 में हुई थी, जब पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। उन्होंने प्लान किया था, प्लान करने के बाद उसके बाद दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के बाद संसद के भीतर तक पहुंच गए। तो वो एक बड़ी चूक थी, इसको चूक नहीं कहा जाएगा। ये तो किसके मैंने सांसद को, आज हम सांसद हैं, हम किसी 2 लोगों को भी अप्लाई वो लिख सकते हैं, उनको पास जारी करेगी संसद, वो संसद के भीतर आएंगे तो संसद के भीतर बैठेंगे। लेकिन वो हमने पास जारी किया ना। अब उसमें जब वो अंदर आए हैं तो वो अंदर कोई आर्म्स लेकर नहीं जा पाए, आरडीएक्स लेकर नहीं जा पाए, कोई विस्फोटक लेकर नहीं जा पाए, क्योंकि वो विस्फोटक कोई होगा तो वो तो स्कैन हो जाएगा जी, पकड़ जाएंगे। कोई आर्म्स होगा तो पकड़ जाएंगे, मेटल होगा कोई पकड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर वो जूते में रखकर अपना ले गए, और वो भी सांसद की रिकमेंड पर उनका पास बना है। तो इसलिए इसको कोई बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये एक मानवीय भूल इसको कहा जा सकता है कि भाई हमारे सांसद से कहीं ना कहीं चूक हुई। कैसे इन लोगों के पास बनाए, जब आप जानते नहीं थे तो किसने पास बनवा दिए। कई बार होता क्या है कि हम ही लोग गए तो वहाँ तो संसद में तमाम सिक्योरिटी वाले या अन्य जो वहाँ कामकाज करने वाले लोग होते हैं, वो आज भाई साहब ये हमारे परिवार के 2 लोग आए हैं, जरा आप साइन कर दीजिए। तो जनरल आदमी कर भी देता है कि भाई ठीक है, रोज हमारी सुरक्षा में रहते हैं ये लोग। 1-2 बार हमारे साथ भी हुआ तो, लेकिन खैर एक बार हुआ तो हम बोले आप साइन कर दीजिए। तो उसमें मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, हमने कहा यार ऐसा है कि अभी हमारे लौट के कर देंगे। मतलब मेरे दिमाग में आया कि नहीं करना चाहिए हमको, हमने नहीं किया। तो कुल मिलाकर बाई चांस कर भी देते हम। तो ये सब चीज इसको वैसे गंभीर चूक मेरे हिसाब से तो नहीं कही जा सकती। तो हाँ, और संसद में वो लोग ऊपर से जहाँ दर्शक दीर्घा थी काफी दूरी भी है, नीचे देखो आप
आप तो पत्रकार हैं, आप लोग तो जरूर देखे ही होंगे वहां के ऊपर, तो ऊपर से नीचे तक कूदने में भी कोई आसानी से नहीं कूद सकता, तो ये माने वेल ट्रेंड लोग रहे होंगे। बिल्कुल। तो और मेरा तो स्पष्ट है कि आज के दिन केवल उसको जोड़ के मत देखिए 2001 से, आज 3 राज्यों में शपथ ग्रहण भी था, और ये जो शपथ ग्रहण हो रहा है, तो मैंने वही कहा ना कि पिछले 4 दिन में 4 बड़े फैसले देश में हुए हैं, जो भारत के भविष्य, बेहतर भविष्य से जुड़े हुए ये चारों फैसले हैं। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं क्या उसको प्रभावित करने के भी तो कोई वो नहीं है। जी, इसका जिक्र तो आपने पहले भी किया था। इसको अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। श्याम सिंह यादव जो बीएसपी के एमपी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो भी थे लोकसभा में जब ये हुआ था, जब ये घटना घटी थी। ये जो सिस्टम है एमपीज का, जो रेकमेंड करके विजिटर पास बनाने का जो सिस्टम है, क्या आपको लगता है श्याम सिंह यादव जी इसमें बड़ा चूक हुआ है और इस सिस्टम का पूरा रिव्यू होना चाहिए? फिलहाल तो स्पीकर साहब ने ये बोला है कि अभी कोई विजिटर पास इशू नहीं होगा, जब तक ये पूरी जांच खत्म नहीं होगी तब तक कोई विजिटर पास इशू नहीं होगा। क्या वो सिस्टम, उस व्यवस्था की पूरी मतलब ओवरहॉल होनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए क्या है कि जो पास इशू किया था वो बीजेपी के सत्ताधारी दल के एमपी ने किया था, लेकिन मैं यहाँ वो उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता जी। इसको तो मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई आता है, मैं उसको जानता हूँ, 1 साल से, 4 साल से, 10 साल से अच्छी तरह से जानता हूँ, और जानता हूँ कि ये बदमाश नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, ये अच्छा आदमी है और कानून को मानने वाला है, लॉ अबाइडिंग है, तो हम उसके लिए पास को रिकमेंड कर देते हैं। उसी तरह से जिस माननीय एमपी ने उसका पास इशू किया, देखिए मैं उसकी गलती नहीं मानता उन एमपी साहब की, मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सही कर रहा हूँ। जैसे आप ही हैं, मेरे पास आए, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और आपके कैरेक्टर को जानता हूँ, सब चीज़ को जानता हूँ कि आप अच्छी फितरत वाले आदमी हैं, तो मैं पास इशू कर देता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये नहीं है कि कब आपके दिमाग में इस तरह के शरारत करने की, साजिश करने की किसी वजह से किसी भी समय आ सकती है, वो तो मैं नहीं जान सकता। तो यहाँ तो मैं कहूँगा कि उन एमपी साहब की गलती नहीं है, लेकिन जो अभी हमारे पूर्व वक्ता साहब कह रहे थे, मैं उनको जान नहीं रहा हूँ, शायद माननीय सांसद होंगे, कि ये कोई चूक नहीं है, तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा सिक्योरिटी लैब्स है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। मान लीजिए वो कहते हैं कि वो मेटल नहीं था, वो होता तो बारूद होता, एक्सप्लोसिव होता तो पकड़ा जाता, ये नहीं पकड़ा गया। नो, आई डोंट एग्री विद दिस। वो जूते में बारूद भी ला सकता था, जूते में चाकू भी ला सकता था, जूते में ऐसा भी छोटा मोटा हथियार ला सकता था जिससे बहुत सीरियस इंजरी इन्फ्लिक्ट कर सकता था, और आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो उनका ये कहना है कि ये साधारण सी चूक है, तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। ये बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, और जी आप भी मानते हैं कि ये बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है? आई मीन आज तो वो कोई कलर बॉम्ब, कोई स्मोक कैनिस्टर था, क्या करते अगर वो स्मोक पॉइजनस स्मोक हुआ तो, या उस शू के अंदर वो बंदूक भी लेके आ सकता था, चाकू भी लेके आ सकता था। क्या आपको लगता है कि ठीक है आज तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन ये इतना बड़ा चूक नहीं है जैसे सुब्रत पाठक जी बता रहे, या आप उनसे असहमत हैं? औजला जी देखिए, मैं तो यही एक बात इनकी दिक्कत है बहुत बड़ी, कि ये जो बात होती है इसको टिल्ट करने के इनमें बड़ा एक मतलब कह सकते कोशिश करते हैं ये लोग। चूक क्यों नहीं है? कैसे जो कह सकते चूक नहीं है? आज वहां कोई जहरीली गैस हो जाती, को मर जाते, तो फिर आप फिर इसको मरने के बाद इसको चूक कहना था। मैं तो हैरान हूं इनके बयान देने के ऊपर। नहीं ये कोई छोटी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इनके डिफिनीशन के हिसाब से जब तक कोई मरे नहीं बड़ी तब बात तक है। आपको नहीं समझ क्यों नहीं आ रही? हमने तो वो मंजर, मैं अंदर था, मैं अंदर था, ये बात, ये उस समय माहौल देखने वाला था। ये तो बाद में अंदर आए, उसमें मैं माहौल देखने वाला था, क्या हालात थे वहां लोगों के, और लोगों के हाथ पैर फूले हुए थे, पता नहीं ऐसे लगा अटैक हो गया है। आप कह रहे चूक नहीं है? यही तो इनकी दिक्कत है। मैं तो ये शुक्र करता हूं कि वो मुसलमान या सिख नहीं है। अभी तक इन्होंने कोई और पेंट कर देना था, इन्होंने कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
ये तो भगवान का शुक्र है, क्योंकि जो शरारती बंदा वो किसी जात धर्म से नहीं होता, ये उसको आसानी से धर्म के साथ जोड़ देंगे, जात के साथ जोड़ देंगे। इनको माफी मांगने की बजाय, गलती मानने की बजाय, ये भी बड़े आराम से बात कर रही है जी, हो जाता है जी, ले आए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कमाल है यार, मर जाते हैं लोग तो फिर आप जू किसको मानते हैं? और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। वो आज का दिन उन्होंने मिथ रखा है। हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, गलती हुई है, हम पूर्ण तौर पे सरकार के साथ हैं, सरकार इसकी तहकीकात पे जाए, ये मत करे कि ये झूक नहीं हुई है, ये कोई आ गया। हाँ, रिकमेंडेशन में हम भी कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन हमसे लोग ले जाते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन से आ सकता है, लेकिन जो सिक्योरिटी है, अभी नया पार्लियामेंट बना है, इसमें और अच्छे जंतर लगाने की जरूरत है, इसको और अच्छा करने की जरूरत है, इस पे बात होनी चाहिए। और पास बंद कर दिए, मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा किसी का पास बंद होना चाहिए, लोगों के लिए खुला रहना चाहिए। ठीक है, थोड़े दिन के लिए आप कर दोगे, आप इसकी तहकीकात करनी है, क्योंकि ये तो फिर तो हम घर में कैद कर दो हम सबको, पार्लियामेंट बंद कर दो। करने तो मानना पड़ेगा ना कि इतना डर देंगे हम, ये तो बड़ी इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो हुई है। इतना बड़ा देश है, नहीं मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा देश है, वो बंद करके बैठ जाएगा? किसी का पास नहीं कैंसिल होना चाहिए, सबको आने दो। हमारा काम है कि हमने इसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है, वो आप देखिए। नहीं पाठक साहब, इतना तो मानना पड़ेगा ना कि मतलब बड़ी पैमाने पे ये एक चूक हुई है, इसका हल भी करनी है सरकार को, और पार्लियामेंट्री जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको इस समस्या का हल भी करनी है। लेकिन पहला तो हमें ये मानना पड़ेगा ना कि इतनी बड़ी चूक तो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं देखो, आप फिर वही बात, अब ये लोग तो चूंकि अभी ने तो मौका मिला है तो ये कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, अभी हम सब सांसद लोग हैं, हम सब सांसद लोग जाते हैं। अब ये बोले कुछ लेकर चला आवे, तो अगर कोई सांसद ही कुछ लेकर चला आवे तो क्या कर लोगे इसको? अभी कोई यही जो सांसद बोल रहे हैं, यही अगर संसद के भीतर इनकी तो कोई चेकिंग होती नहीं है, ये कुछ लेकर चले आए तो क्या होगा? और दूसरा फिर आप वही बात, जो सांसद की रिकमेंड पर गया है, जो व्यक्ति वहां के ऊपर गया है, दर्शक दीर्घा में गया है, वो सांसद की रिकमेंड में गया है। अब अपने जूते में रख के कोई क्या ले जाएगा तो उसको कैसे देगा? या तो सबके जूते उतार के जाए भविष्य में, तो ये तय करो कि भाई चलो कोई जूता पहनकर नहीं जाएगा। नहीं, वो ऐसे तो होता है ना, एयरपोर्ट वाले सिक्योरिटी में तो होता है, जूता उतारना पड़ता है। एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी होती है उसमें तो जूता उतारना पड़ता है आपको। करिए ना। तो अब जहां सुरक्षा में जहां से चूक हुई है, तो चूक कहां पर हुई है? चूक तो यही ना, सांसद की रिकमेंड पर आया। अब ठीक है, अब आगे जो भी आए अब उसको जूता उतारना पड़ेगा। अब अभी तक तो जो आपने देखा होगा कि वो पेन भी नहीं ले जा सकता, कागज भी नहीं ले जा सकता, उसकी पूरी जेब की तलाशी होती है, उसका मोबाइल भी नहीं जा सकता भीतर, जो भी दर्शक दीर्घा में जाता है। तो अब आगे से अब ये चीज भी तय होगी कि भाई जूता उतार कर भी जाए वो। नहीं, और ये जो सिस्टम है एमपी का रिकमेंडेशन, ठीक है साहब आपको भी पता है, आप सारे एमपीज बैठे हैं, सारे सांसद बैठे हैं, ये जो रिकमेंडेशन वाला सिस्टम जो होता है वो सांसद के ऑफिस में कोई सेक्रेटरी ने साइन कर दी या किसी और स्टाफ ने साइन कर दी, इस व्यवस्था में भी कुछ समस्या का हालात निकलना चाहिए ना? नहीं, इसमें कोई सांसद के ऑफिस से कोई साइन नहीं करता, इसमें सांसद के ही साइन होते हैं, और वही साइन होते हैं जो साइन हम लोगों के अटैच कराए जाते हैं। तो जो कुल मिलाकर वही साइन करते हैं, हम स्वयं अपने साइन करते हैं। मेरे साइन कोई मेरा वो नहीं करता है, पीएस साइन मेरा नहीं तो अगर ऐसा हुआ है, जिसका पीएस करता होगा तो ये वो सांसद जी ने खुद होगी तो नहीं, अगर सांसद जी ने खुद साइन किया है तो इससे और बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है ये। आपने हाल ही में देखा एक सांसद को मतलब रद्द किया गया क्योंकि उसके पार्लियामेंट के जो लॉगिन है, ईमेल जो है वो उसने शेयर किया। अब ये तो एक सांसद ने आके रिकमेंडेशन दे दिया आपने खुद हस्ताक्षर देके, तो ये तो उससे भी बड़ी चूक है ना? नहीं, मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं ना, मानवीय भूल है। अब क्यों, कहां हुई, कैसे हुई, किससे हुई, अभी तो जांच हो ही रहा है, तो अब इसमें सब चीजें सामने आएंगी। ठीक है, ये भी तो देखा जाए कि उनके साइन हैं कि नहीं है। अब जिस सांसद का नाम लिया जा रहा है क्या उनके साइन मैच कर रहे हैं क्या? भाई कुल मिलाकर अभी तो प्रारंभिक जांच में क्या चीजें सामने आई अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, तो कोई एक लखनऊ का है, कोई आप एक जवाब देना है। चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था है इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए कि एमपी ने कैसे अपने रिकमेंडेशन दे दिया? कि अभी पाठक साहब बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि एमपी के स्टाफ ने दे दिया या कोई सेक्रेटरी ने दे दिया। नहीं,
नॉर्मल कोर्स ये है कि चाहे स्टाफ कराए चाहे सेक्रेटरी कराए, करना है सिग्नेचर सांसद को ही जी। और सांसद को सिग्नेचर करते हुए आंख मूंद के नहीं करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, जानना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए है कौन, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज कि ठीक है। लेकिन अब उसका दूसरा भी, अगर सांसद ने साइन कर दिया तो दूसरा भी सिक्योरिटी लेयर आता है, वो पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के लोगों का है कि वो उसके एक्सरे मशीन से गुजरते हैं और बाकायदा फ्रिस्किंग होती है उसकी। तो दे शुड बी सिक्योरिटी पीपुल शुड बी मोर अलर्ट। अब ऐसा नहीं कि सांसद ने साइन कर दिया और अच्छा जानता है तो बाकी और भी तो लोग हैं सिक्योरिटी। वो तो वैलिड पॉइंट है। आई वांट टू गो टू एसएन श्रीवास्तव आल्सो, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आफ्टर व्हिच आई विल गो टू काकोली घोष दास्तीदार एंड हनुमान बेलीवाल आल्सो। बट श्रीवास्तव साहब, यू नो दिस इज अ फेयर पॉइंट जो सांसद अभी कह रहे थे कि you know fine, the MP sometimes recommends, you know, maybe somebody from his constituency. I believe one of the attackers was from Mysore. Mr. Simha is an MP from Mysore, so he may have signed because of that. But there are 3 layers of security, one outside the building, one at the entrance of the building, one outside the visitors gallery. You know, these 3 layers of security are manned by 3 different agencies, by the way. How did these 2 people manage to breach these 3 layers of security? ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है, Mr. Srivastava. Okay, the question is for me. Yes. Yes, everybody has a responsibility. I totally agree with you. Here, first of all, I want to say that definitely there has been a breach, and this breach of security is required to be properly investigated, how it actually happened. Having worked in the security organization and also in Delhi Police and other organizations, I know that there is a well laid out system. But the well laid out system functions only when it is properly implemented. We had a security breach 22 years back, and we had it today. Such a thing was not desirable, but it happened. So for planning any further security arrangements, what other improvements is required to be done, the first thing is to inquire into or investigate into what was the lapse, where the lapse happened, and breach that. There can be many other things. For example, I was listening to the honorable MPs about the manner in which some recommendations can be given to an individual. कैसे उनको किसी भी अपने कंस्टिट्यूंसी का या किसी व्यक्ति को recommend करते हैं. So, I mean, certainly they are not expected to be security experts, even though they have a lot of knowledge, understanding. But I would say that some kind of background check may also be required. If the honorable MP is not well aware of the person whom he is recommending, some background check is required to be done. Okay. Number 2 is that somebody, I mean, not everything can be detected by the frisking. Of course, by frisking by hand, one can find out whether somebody is carrying something. But metal detector will not be able to, detect something which is not metal. So there is a requirement for to know what exactly was the fault. My sense says that the best way to make a security foolproof is to find out how the security can be breached. Okay. And once you know how the security can be breached, then accordingly you plug the loopholes. For example, just like there are many viruses which are they are also software. They are created by somebody. So the various computer organization who wants to plug the viruses in this software, they choose the same people who create virus, and accordingly create an antidote so that those viruses are not effective.
So this is what is going to happen, what should happen, that find out, suspect how to breach the security and accordingly make arrangements so that the security is not further breached. We need to do it further because, see, India is progressing and there would be many envying our progress. Parliament is a place where, besides the honorable MPs, the people at the highest position in the government, they also come. So it is very important that there should not be any, the security arrangement need to be completely fail-proof. There should not be any question of, once in many years, 22 years, a breach has happened. It should never happen. So Subrat Pathak, before he leaves us, Pathak साहब, मतलब आपने पहले भी कहा कि आप 2001 के जो घटना घटी उसके साथ आप जुड़िए मत, लेकिन आप ये भी हैं, मतलब इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा ना कि उसी दिन इन लोगों ने क्यों चूज किया, और वो भी पहला तो पुराने पार्लियामेंट में अटैक हुआ, आज नए सांसद में अटैक हुआ। क्या आपको लगता है कि कुछ सिक्योरिटी का कुछ ओवरहॉल तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि खासकर ये नया पार्लियामेंट है और जैसे श्रीवास्तव साहब अभी बता रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है, तो लोग देख रहे हैं, काफी सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो इसको रोकना चाहेंगे, तो उसका एक पूरा सिक्योरिटी ओवरहॉल पे नजर लगाना तो पड़ेगा ही। हाँ, देखिए ये बात आपकी ठीक है, और ये भी जो बोल रहे थे श्याम सिंह कौन सांसद हैं, पता नहीं कहाँ से सांसद हैं, लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं और किस पार्टी के हैं, तो मालूम नहीं, अगर हैं तो इनको चीज़ों को समझ में आता होगा, इन्होंने फिर देखा भी होगा कि जब हम अंदर जाते हैं तो आज हमारा फेस एकदम से वो देख लेता है, उसके बाद ही आपको आने दिया जाता है, पहले लोगों को पहचानना पड़ता था, तो ये नई संसद का फ़र्क है। तो कुल मिलाकर अब नई संसद में सिक्योरिटी भी पहले से काफ़ी बेटर है, ये सभी लोग जानते हैं जो भी नई संसद में जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने फिर वही बात कि वो जूते में गया और सांसद की रिकमेंड पर गया, और आज का दिन केवल उस दिन से ना जोड़ा जाए, आज के दिन साथ साथ 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय के बाद में आज वहाँ के ऊपर शपथ ग्रहण भी था, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी आज आउट हुआ है पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रभावित करने का कोई रणनीति। फिर मैंने कहा ना कि एक देश में एक बहुत बड़े लोग ऐसे हैं कि जो अपनी आंख फोड़ लें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नुकसान कैसे हो जाए, तो कुल मिलाकर इस टाइप के लोग भी हैं। तो क्या हो सकता है, ये अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी है 1-2 दिन में सब सामने आ जाएगा। हाँ, अगर किसी ने षड्यंत्र रचा होगा तो उसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि बहुत बड़ी गलती कर गया है, वो शायद भूल गया है कि भारत में किसकी सरकार है और कौन देश का प्रधानमंत्री है, कौन देश का गृह मंत्री है, ये शायद उसको जानकारी शायद भूल गया होगा, तभी इस प्रकार की गलती कर गया। सब सामने आएगा, सब कुछ आप देखते रहिए। Okay, Pathak ji, बहुत धन्यवाद. Let me go to Kakoli Ghosh Dastidar, who's been waiting very patiently. You were also there in the Lok Sabha today. We saw these dramatic pictures. Ma'am, so when these two intruders jumped onto the Lok Sabha floor, did you try reaching out to the security, the watch and ward staff there? What exactly was going on? Because from whatever we could see from the pictures, it was the MPs themselves who managed to catch these two guys and then beat them up and then handed them over to the security people. Where was all the security staff who's supposed to be inside the house? You see, it was past the question hour and we were through the 0 hour when suddenly I heard a thud and looked to my left, because we sit on the left side of the speaker's chair, and the gallery towards the left of the speaker's chair was full of visitors, and I saw that one person had jumped down from there. Now we thought first that he must have fallen or something, but immediately after him there was another person who caught hold of the railing and he also jumped into the Lok Sabha where we sit, where the members were sitting, and immediately after jumping into the house, they both got up and started running towards the speaker, over the chairs, over the table, not on the floor. They were crossing, jumping over chairs as if they are expert hurdle runners, like people cross over hurdles, and coming down from a height of
might have been like 2-storied or 3-storied. This must have required a lot of practice. So it suddenly went to my mind that they might be terrorists or guerrilla warfare people. But and as generally, I was on any thinking given it, the working second day, man pulled out something particularly from when the somewhere, House is in session, and the ma'am, room just was 1 second. full of smoke. When the House is in session, there is anyway heightened security. Today, of course, was the anniversary of the 13 December terror attacks that happened in 2001. There's the paramilitary forces, there's the CRPF, there is the Delhi police, there's the parliamentary watch and ward staff. Did you try alerting any of these people? Where were they when this happened, when this incident happened? No. See, this watch and ward staff, they only scold or shout or intimidate the opposition MPs. That's what I found today. They didn't even move an inch. It was only 3-4 opposition MPs who went forward towards this man who jumped into the house and caught hold of him. But none of the system worked. So this is a deplorable condition of security arrangement. The government has failed the people totally. The sanctity of the parliament has been breached, and we are so insecure in the country and inside the parliament. We realized today, I ran out, and I also asked the security people who take our fingerprints and our pictures while we enter. I told them, go inside, something is happening, there are some people, but nobody moved an inch. It was not before 30-40 minutes that I found 1 or 2 police officers come in. So we all evacuated, nobody helped us. The Honorable Speaker was not in the chair. Chairman Rajesh Agarwal ji was possibly conducting the House. Then he adjourned the House, and we again started at 2 o'clock. So बेनीवाल जी, आप अभी सरकार ने ये भी तय किया है कि पूरा जो आज की घटना घटी उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका जांच होगी. फिलहाल स्पीकर का ये भी रूलिंग है कि विजिटर पास का जो सिस्टम है, कोई नया विजिटर पास नहीं दिया जाएगा. आप क्या चाहते हैं? ये जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसकी पूरी ओवरहॉल हो जाए. कि आपकी सरकार से आज क्या मांग है कि पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर होता है वहां पे पूरा सिक्योरिटी व्यवस्था का ओवरहॉल होना चाहिए? ये मांगेंगे आप सरकार से आज? उनको सस्पेंड करो, उनको, इनके बड़े जितने भी अधिकारी है, बड़े अधिकारी उनके आईजी डीआईजी निलंबित होने चाहिए सारे. पार्लियामेंट सिक्योरिटी में जितने पद खाली है 100 तुरंत भरे. और एक ये साहब ऐसा है कि चाहे जो व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, चेक हो रहा नहीं हो रहा है, ये तो एक तरीके से देखो पार्लियामेंट भी आपको पता कैसे चल रहा है, आप जानते हो सारा. मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं, दबे मुंह लोग बात भी कहते हैं. पार्लियामेंट के हिसाब से चलता है. पार्लियामेंट समानांतर सरकार नहीं होता. सरकार होती है, पार्लियामेंट होता है. अगर आप पार्लियामेंट को ऐसे चाहोगे सरकार है तो कभी नहीं हो सकता. पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है. आप पार्लियामेंट को गवर्नमेंट की तरह चलाने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं चलेगा. ये जो हुआ है, ये बीजेपी का सांसद मैसूर का, उसकी रिकमेंडेशन में ये लोग अंदर आए थे. अगर इस एमपी बीजेपी वाले की जगह अगर दूसरा एमपी होता, मान लो मैं होता, कोई कांग्रेस का होता, तो अभी तक तो हमारी ये लोग ऐसी की तैसी कर देते सारे के सारे. उनका सांसद तो उनकी रिकमेंड पाया, उनकी इनके ही लोग है सारे, यही लाने वाले, यही ले जाने वाले, यही रिपोर्ट देने वाले, यही रिकॉर्डिंग देने वाले. तो गड़बड़ है पूरा मामला. ब्लंडर मिस्टेक है. बड़ी जांच होनी चाहिए. गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से कि हम सुरक्षित नहीं है. करोड़ों रुपए लगा के नई पार्लियामेंट बनाई और पार्लियामेंट बनने के बाद ये स्थिति से देश गुजर रहा. आप देख लीजिए. श्याम सिंह जी, ये सरकार की तरफ से आई थिंक आज राज्यसभा में ये भी कहा गया था एक मंत्री के द्वारा कि देखो इसको राजनीतिक दौर पे नहीं देखना चाहिए, ये इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. लेकिन जो सवाल बेनीवाल जी पूछ रहे हैं या काकोली घोष दास्तीदार जी पूछ रही हैं, ये तो जायज़ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चूक तो एक तो होना नहीं चाहिए था, और दूसरा जो है ये स्थिति जो आज हुई, मान लीजिए उस स्मोक कैनिस्टर के जगह कोई जहरीली गैस होती तो फिर मतलब एकदम बड़ी दुर्घटना घटती संसद के अंदर. तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो दो व्यवस्था है, एक तो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी का व्यवस्था और दूसरा ये एमपी रिकमेंडेशन सिस्टम जो है, ये दोनों का मतलब ओवरहॉल होना चाहिए. आप मानेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं राज्यसभा से नहीं हूँ, लोकसभा से हूँ. जब एक घटना हुई तो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ. मैंने उसको पूरा देखा है और कई टीवी चैनल पर पूरा बयां किया है उसको.
दूसरी चीज़ यह है कि जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, जो एमपी साहबान उसको रिकमेंड करते हैं उनको थोड़ा सोच समझ कर देख करके और जहाँ तक संभव हो काफ़ी हद तक वेरीफाई करके ही करना चाहिए। लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ कि उनके रिकमेंडेशन के बाद कोई जरूरी नहीं कि पास उसी दिन बना दिया जाए, दूसरे दिन बना दिया जाए। देयर मस्ट बी सम टाइम गैप 2-3 डेज, जिसमें कोई और पुलिस हो, इंटेलिजेंस हो, हर आदमी के बारे में एक जांच करके रिपोर्ट दे, तभी उसको क्लियर एमपी का रिकमेंडेशन क्लियर होना चाहिए। और जैसा हमारे सांसद ये हनुमान बेनीवाल जी कह रहे थे, उनकी बात सही है कि गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक अब इतनी मेजॉरिटी हो गई है कि वो लोग अपोजिशन को कुछ समझते नहीं और अपोजिशन की बात को रत्ती भर भी नहीं मानते। चाहे बिल हो, चाहे कोई और सजेशन हो, उसको सब ब्रश डिसाइड कर देते हैं। और सरकार अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के बल पर हर चीज की जांच ऑर्डर करते हैं, लेकिन किसी चीज का इनकी जांच का कोई वो रिजल्ट नहीं निकलता। आपने देखा जितनी जांचें अभी पार्लियामेंट में कुछ किसी एमपी ने मिसबिहेव किया, क्या क्या किया, तो उनके लोग कुछ भी करके बाहर निकल जाते हैं। और अपोजिशन अगर क्या कहते हैं, हम क्या है वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इस समय की वही स्थिति चल रही है पार्लियामेंट को, मैं बताऊं। ठीक है, श्याम सिंह यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल, काकोली घोष दास्तीदार, also Mr. Aujla and Mr. Srivastava, and of course Mr. Pathak who joined us. Like I said, I am very clear in my mind that this was a major breach of security and there needs to be an overhaul for the security system in Parliament and also this MP recommendation system. Now we have some preliminary details, and CNN News 18's Manoj Gupta has managed to access details of the multi-agency probe. Top intelligence sources are saying that first agencies will be probing the associations of these 4 individuals who are arrested today with various ideological groups. Their homes, their associations will be under probe. Agencies are probing what is it that motivated them to act, and that too attack something as sacred in this country as the Parliament of India. All concerned anti-terror squads, state intelligence bureaus are all working. There will be a few raids as well to try and ascertain if there were other fellow conspirators. We're also getting word that Sagar, the first person who jumped, Sagar Sharma, he's from Lucknow. He apparently is an e-rickshaw driver in Lucknow is what we have been told. Teams have been formed to reach his house. His family apparently happens to be very poor, and they will be taken for questioning as well to find out what is it that motivated him to do this. Anshul has more details on this. Anshul, take us through what more do we know from the preliminary investigation? So yes, the preliminary investigation has started in this entire matter, and what we are being told at this point in time that initially from the investigation that has happened, these people say that they were unhappy about the condition of unemployment and about the price rises that is happening in the country. In fact, Neelam, who is one of the accused and was arrested from outside the parliament, she was one of the persons whose family is now claiming that yes, she had a lot of education, but she was not getting any jobs, and in fact, she was also involved in the farmers' protest as well. That has also come out in the investigation. Her videos have also surfaced. Now, the police is proving that if at all, in fact, the multi-agency probe that has been initiated in this entire matter, they are trying to probe that if at all this had any connections with the farmers' protest, or this date of 13 December was selected for some particular reason, or was this just arbitrary. Now, what sources have told us that yes, at least 6 people were involved in this plan, out of which 4 have been taken into custody, and the other 2 who used to stay in Gurugram and where the initial meeting happened regarding the protest, they are also under the radar. Police also is trying to find out if at all some other people were also involved who were giving them the idea to carry out such a to carry out such a protest that could have such a big impact out here across the country as well. So yes, it remains to be seen what comes out from the investigation. But okay, we'll see what comes out of the investigation. Anshul, I'm sorry to curtail, but we also have one more interview to play of an MP who was also there. Arvind Sawant of the Shiv Sena will be joining us right after this. But before that, the former commander of the Chinar Corps, Lieutenant General KJS Dhillon, has tweeted on this breach, and that's part of our Motorola India's best 5G smartphone brands tweet of the day.
Hello, Moto. This is what General Dillon has tweeted. Lessons from today's incident in Parliament. Number one, Intel needs to be serious upgradation. Number two, on important days, anniversary security checks need to be upped. 3 MPs need training in emergency evacuation drills. Number 4, immediate response drills by quick reaction teams need to be honed. Jai Hind. And I think these will be lessons that will be learned from today's incident. Let's now go across to Mr. Arvind Sawant, the MP from the Shiv Sena. All right, major security breach in Parliament. 2 people jumped from the visitors' gallery onto the floor of the Lok Sabha. They had smoke canisters in their shoes, which went off on the floor of the Lok Sabha. Some brave MPs confronted them and then brought them in control. One of those MPs is now joining us. Mr. Arvind Sawant is Shiv Sena MP from the UBT faction. Mr. Sawant, please describe for our viewers what exactly happened. What did you see in front of you? And, you know, you had the presence of mind to go and run to this one person and try and confront him. Yes. I think Shashi Tharoor was demanding something of his from his constituency regarding railways services. Yeah. Suddenly I was sitting beside Dr. Ashwini ji, was the railway minister too and the communication minister too. And beside him was Dr. Mansukh Mandviya was there. Okay. And as I was looking at them, I was looking, my sight was towards the gallery only. And I could see the visitors, one young lad tried to jump down, hang himself for a moment to the bar over there and then jumped. After jumping, he started jumping from one bench to another because during the Jura hours, the presence in the house is little bit less than the regular one. Okay. So naturally, it was vacant. He was dancing like, he was jumping from one bench to another bench. So as it was noticed by so many, then the jump, all MPs who were there from all sides ran to catch him. And then he was again trying to, while doing so, he came into the passage later on. Once he came in the passage, he removed his shoes and hold it in the hand. And by that time, he was caught by all MPs were there and he was, you can say. But during that moment, something must be there with him. Yeah. He's ignited the fiery, that gas. And that yellow gas emanated from his, I think it must have emanated from his, something must have been there in his shoes. That is the reason he has removed the shoes. Yeah. And that gas emanated from his shoes. And then naturally, those MPs who caught him, that gas has gone into their face directly first. And they little bit moved away, but by that time he too was held properly and given to the police, the security guard over there. So you've been a member of parliament for a number of years now. 5 minutes, all those things have you seen something like this? Would you construe this as a major security breach? On the very day in 2001, the parliament was attacked by the terrorists. Yeah. And on the very same day, these guys, but they could not dare to come into the house. The soldiers, the staff who were there, securities fought with the terrorists and saved the parliament. Today it is the other way. They entered into the house. And had the gas been a poisonous one, what would have happened? So there is a serious lapse on the part of security. There is a serious lapse on the part of functioning of the Home Department itself. In response to today's attack, that all visitor passes will be suspended. Do you believe that that's the right way to go? That's escapism. It's a lapse on the security as well. And that's a pure escapism. You understand the situation. I said just now that on the very day in 2001, there was an attack on our parliament. But it was a terrorist attack. Abdul Guru and all those things have been caught. But they did not dare to enter because our security was so tight. And all those were sacrificed there. It is the anniversary day for them. We were just paid homage to them. And then on the very day, somebody is entering in the house. Luckily, the gas was not poisonous. Had it been a poisonous gas, what would have happened? Just think of it. Whoever it may be, whether he is a terrorist or whether he is somebody else. But then it is a serious lapse on the part of security. How can they enter into, the visitors' gallery?